started. So welcome everyone. And the topic for today is financial literacy program. And the organizer is Pathways Foundation. And just to give you a very brief introduction about uh, Pathways Foundation and what we have been doing. So Pathways Foundation started in 2019. I think someone is unmuted. So I would request everybody to mute till we. Uh, so please mute your audios, and then when we have questions and we have to ask something, you can raise your hand or then unmute yourself. Thank you so much, everyone. And there are some more participants who have joined. Vishika, Jeet, welcome everybody. So Pathways Foundation, I'll just give you a brief introduction about Pathways. So we started the foundation in 2019, and the projects that we run are preventive healthcare that includes physical and mental health, education, skill development, financial literacy, which comes under education, livelihood generation, and skill training project. And that project is known as Swavalambi. Awareness programs we hold for different things, right from like health, education, even about the environment. So there are different awareness programs that we hold. The focus changes from time to time. Especially in this COVID period, we had held awareness about cleanliness, hygiene, and nutrition, and how to have a good immunity. Immunity with good nutrition and keeping your lifestyle good. So that was the awareness that we had in our areas that we work. So as a social responsibility, Pathways has been continuously working for relief work since the COVID, this lockdown had begun. So since beginning, we were doing the ration distribution, arranging for conveyance for laborers, counseling for people in distress, and guidance and counseling for parents. So many parents were facing issues with their children and their families at home. So we were doing counseling and guidance for them also. Then there were people who required medical aid who were in problems with their financial needs. So we help them also. So and we have been doing webinars for mental health, suicide prevention, and self-care. Career guidance is also one area that we do. So there are students who have finished their 10th and 12th. So we have been doing career guidance for them also. And I just request everyone, this webinar was open for all the parents because each and everyone has financial issues. So this was open for all. But in the future, we are going to have more concentration on special need parents, and we are going to have webinars on awareness with how to create the UDID cards, or registering for them, or then opening a trust account, or then guidance for parents how to do this guardianship, how to register for the guardianship or for the children. So all those things we are going to have in future. So I would request the parents who have come here for this webinar, who parents with special needs children. So please put down your numbers and your email ID so that we can contact you and let you know about these webinars in future. Or then even we are going to share our number and our email ID. So you can also get in touch with us.
And we are also going to have webinars on vocational skill trainings of special needs children and skill training, and how to gauge their interest in what field they are interested in, what field they can take up as a vocation. So all these webinars we are going to have in future. The time and the date is not yet fixed, so that is why I'm asking for your own numbers and your email ID so that we can get in touch with you, or then you can also get in touch with us. So now we begin with our today's topic, and I invite Mr. Avinash Kamble. He is here with some other name. Sir, आप कौन से नाम से join कर रहे हैं आज? So that people can just see. I think he is joined on the somebody else's name. Avinash sir, आप है यहाँ? Yes ma'am. आप सिर्फ अपना वीडियो ऑन करिए तो लोग आपको देखेंगे. मेरा ऑन है वीडियो. Okay. So one thing I was just wanted to mention before, we had asked for preferences whether we could do the webinar in English or Hindi. So I think we could stick to our local language Hindi, because there are people here from all over India. So there are people from Bangalore, Goa, Chandigarh, Tamil Nadu also, and there are different regions where that people have joined in from. So I think Hindi is the most common language which everybody will understand. And if there is any issue, if there is any point that you can't understand, please write in the chat or raise your hand and ask, so that we can just translate it or make you understand. So that is one thing that I just wanted to tell you all. So Mr. Avinash Kamble here, he is a coordinator of NIIT's financial literacy program. And as Pathways Foundation has collaborated with NIIT, we normally have these sessions, and Mr. Avinash Kamble, he does the training for our groups for financial planning. So he will let you know that what he is doing exactly, and he will take you through. So I invite Mr. Avinash Kamble and ask him to please take it over. Okay. Thank you so much ma'am. मेरा आवाज आ रहा है सभी को? Thank you sir. Please come. हाँ जी sir, आ रहा है. Okay. So first of all, thank you, ma'am, giving a better opportunity for introduce myself. मैं अभी अपना इंट्रोडक्शन दूंगा. पाथवे फाउंडेशन बहुत ही अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है. मैं लगभग एक साल से इनके टच में हूँ, और सभी के ग्रुप में ऑन फील्ड और जो भी मेंबर्स है उनके, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा पाथवे से. तो पाथवे फाउंडेशन इज अ बेटर कम्युनिटी इम्पैक्ट इन महाराष्ट्र. फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट किया है. तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ NIT फाउंडेशन से. NIT फाउंडेशन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो कि स्किल एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट रन करती है ऑल ओवर इंडिया. तो एक फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ बिग प्रोजेक्ट इन NIT फाउंडेशन. Vodafone Foundation is our CSR project partner, and our NIT Foundation is a implement partner. सिंस 2070 से हम ये प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं ऑल इंडिया. हम लगभग 12 स्टेट कवर अप कर चुके हैं. 2070 से अभी 2021 से हम मतलब 3 साल से ये काम पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में पूरे जोर से हम ये काम कर रहे हैं. कि पहले तो एक फाइनेंशियल लिटरेसी की नीड्स क्या थी, उसका ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए क्या ज़रूरत थी. तो हम थोड़ा बेसिक में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे. तो हम पहले हम फाइनेंशियल लिटरेसी चीज़ क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, ये सब जानेंगे. तो
वोडाफोन फाउंडेशन ने पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले इंडिया में सर्वे किया था कि बेसिकली हमारे इंडिया में ये प्रोजेक्ट की ज़रूरत है क्या। बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत सारी सर्वे किया था। तो सर्वे में उनको कुछ आंसर मिले। तो यस, यू डेफिनेटली नीड द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम इन इंडिया। स्पेसिफिकली जो हम बिलोंग करते हैं रूरल इंडिया से, गांव में, विलेज में, तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा एजुकेशन कम है। एजुकेशन कम होने से लोगों को सारी चीज़ें पता नहीं होती कि कैसे हम फाइनेंशियली सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए, हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटस हम इंक्रीज कर सके। तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि उनको उनको कोई बताता नहीं कि क्या ये चीज़ें है, तो हम ये चीज़ें करके हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव कर सकते हैं। तो तो ये उनका एक मेन मोटिव रहा, एक उद्देश्य रहा कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट करना है, उनको उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी यही सिखाता है कि कैसे हम हमारी सिचुएशन है, हमारा जो भी कंडीशन है, वो उठ के थोड़ा हम एक नेक्स्ट स्टेप लेके हम ऑन फॉरवर्ड हो जाए। तो बेसिकली इस यहाँ पे एक फाइनेंशियल लिटरेसी में पहले हम डिस्कवर अप करेंगे कि बेसिकली फाइनेंशियल चीज़ें है क्या। उसके बाद हम फाइनेंशियल डायरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिस्क मैनेजमेंट है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग है। ठीक है, बहुत सारे कंटेंट हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो प्रोग्राम है वो एज ग्रुप हमने डिसाइड किया था 14 से लेकर 60 तक। मतलब उनका कम से कम एज ग्रुप रहना चाहिए कि 14 एज ग्रुप होना चाहिए, और जैसे आगे से आगे उनका 60 एज ग्रुप रहना चाहिए। मतलब इन बिटवीन 40 to 60 पीपल्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोजेक्ट। वीडियो बेस्ड प्रोजेक्ट है। उसमें बहुत सारे वीडियो कंटेंट में वीडियो बना है, एनिमेटेड वीडियोस हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि विलेज में जाके विलेज इम्पैक्ट करते हैं, एक विलेज अडॉप्ट करते हैं, सभी को हम इकट्ठा करते हैं, और टोटली विलेज ये हम करते हैं कि विलेज फाइनेंशियल लिटरेट घोषित करते हैं। और सभी को हम फाइनेंशियल डायरी सर्टिफिकेशन, ये सब ये वोडाफोन फाउंडेशन की तरफ से होता है। तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का सेशन भी होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, एक बहुत सारे केस स्टडीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्जन आया है कि संवाद ऐप का एक ऐप भी है। तो आप मतलब इस प्रोजेक्ट के डिटेल में जानकारी आपको चाहिए, तो मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारा एक संवाद ऐप है, SAMVAAD संवाद ऐप। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे आप संवाद ऐप का नाम सर्च कीजिए। आपको एरोप्लेन का एक सिंबल मिलेगा। हम एरोप्लेन प्लेन एरोप्लेन मतलब हम स्कूल टाइम में हम जो प्लेन बनाते थे, तो वो प्लेन का एक सिंबल है। उसका हम संवाद ऐप डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल से। तो ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। उसमें बहुत सारे कंटेंट है। एक फाइनेंशियल लिटरेसी का भी है और एक डिजिटल लिटरेसी का भी है। उसमें आपको वहाँ पे जो भी कंटेंट है अवेलेबल रहेगा। उसके बारे स्क्यूज़ है, क्वेश्चंस है, वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस सेशन के बाद आप सभी अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे फाइनेंशियल लिटरेसी का संवाद ऐप डाउनलोड कीजिए। बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, और बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। उसके बाद वीडियो बेस्ड प्रोग्राम है, तो मैं पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम बीच में कुछ वीडियो भी प्ले करेंगे। तो यहाँ पे टेरर टेस्टिंग भी होगी कि वीडियो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट हम पहले क्या करेंगे, पहले हम वो स्टार्ट बाय स्टार्ट, वन बाय वन हम करके ये सब प्रोग्राम जो भी एजेंडा है हमारा वो आप कवर अप कर देंगे। फर्स्ट थिंग कि पहले हिस्ट्री क्या थे, मैंने आपको बता दिया कि प्रोजेक्ट कैसा हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कितने एज ग्रुप क्या है, और बेसिकली फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या। मतलब
उनको हम मतलब हिंदी में कह सकते हैं कि आर्थिक साक्षरता, वित्तीय साक्षरता हम कहते हैं। साक्षरता यानी कि सभी की सभी चीज़ें को इंफॉर्मेशन को मालूम होना। मतलब अभी डिजिटल डिजिटल लिटरेसी का ज़माना है, डिजिटल युग है, तो हर हर कोई डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको डिजिटल डिवाइस के बारे में जानकारी होती है। मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, एंड्रॉयड एंड्रॉयड फ़ोन हो, टैब्स हो, बहुत सारे डिजिटल डिवाइस आप बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी सभी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी सभी लिटरेट है डिजिटल डिवाइस की। उसी उसी दौरान फाइनेंशियल लिटरेसी भी होना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग। बच्चों से लेकर आम आदमी तक, मतलब शिक्षित के एज ग्रुप तक, हम सभी के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि वित्तीय साक्षरता अभियान में आपको सभी को कि यहाँ पे बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट रहती है कि बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट मतलब क्या। ओके, मेरा मेरा अभी जो ऑडियो है सभी को आ रहा है, मतलब जो भी आवाज है मेरा सभी को यस सर। ऑडिबल है? जी। ओके, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। ओके, तो बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, मतलब कोई ऐसा मतलब मुझे नहीं लगना चाहिए कि मैं ही बातें कर रहा हूँ। तो आपको पार्टिसिपेट भी होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा कि मतलब वन टू वन नहीं होना, मतलब वन बाय वन नहीं होना चाहिए, वन टू वन होना चाहिए। आप भी आप यहाँ पे बातें शेयर कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो पहले हम मतलब बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ में हमारे नीड्स क्या है, वांट्स क्या है। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, अपने बहुत सारी चीज़ें अपने डेली लाइफ में सुनी होगी। मतलब इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके बाद इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें अपने पता है, मतलब सुनी होगी कि इनकम मतलब हमारा आय क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आय क्या होता है, मतलब हम जो भी कमाते हैं, जब भी हम नौकरी करते हैं, कहाँ पे कोई फार्मर है, कोई टीचर है, कोई मतलब कोई कोई आपका जो भी प्रोफेशनल हो, तो प्रोफेशनल जो भी हो आपका, उससे हम क्या कहते हैं, हम मेहनत करते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम यहाँ कुछ कंपनी में काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है हम, तो कुछ कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हम महीना काम करते हैं, उसके बाद महीने के बाद आपको हमारी सैलरी मिलती है। जो भी सैलरी हम मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारी इनकम, हमारी आय। तो फर्स्ट अपन हम आय, आमदनी कितनी है, महीने की हो या पूरे साल की हो, आपको एक पर्टिकुलर, आपको एक एक सैलरी का एक फिगर आउट आपको होना मालूम होना चाहिए कि हमारा महीने का घर में कितना पैसा आता है, कितनी आमदनी आती है। ठीक है, मतलब घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स है, जो भी मतलब काम काम कर रहे, एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, तो फैमिली में पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितना पैसा आता है। तो हम उसको हम वेल प्लान कर सकते हैं उस पैसे को। पहले ये पता होना चाहिए, हमको पता ही नहीं रहता कि हमारे घर में कितना पैसा आता है। तो पहला काम है कि हमारे आमदनी कितना ये मालूम है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है व्यय, मतलब हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हम मतलब कितना खर्च करते हैं, हमारा घर से कितना पैसा जाता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं कि हमारा जो भी आय है और व्यय है, मतलब इनकम और एक्सपेंस के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाके हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं, हमारा जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं दो दो चीज़ें में कंट्रोल लाने से। तो क्या करना होगा, बहुत आसान चीज़ है कि कंट्रोल कैसे लाएंगे। तो पहला जो इसका एक सॉल्यूशन है कि हम फाइनेंशियल डायरी मेंटेन कर सकते हैं। अभी फाइनेंशियल डायरी एक कंसेप्ट है
कि हम मतलब देखते हैं कि बचपन में हमारे जो भी माँ है, जो हमारे पिताजी है, कि वो कुछ ना कुछ लिख कर रखते थे इस एक डायरी में या एक बुक में। तो हिसाब किताब वो यहाँ पे मेंटेन करते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक ये चलाना होता है, जो भी उनके एक्सपेंसेस है, जो भी उनकी नीड्स है, वो फुलफिल होती है कि नहीं, कितना महीने का खर्चा है, कितना बचा हुआ है, ये सब ये उनको उनके पास रिकॉर्ड रहता था पहले। बट अभी क्या है, वो आदत छूट गई सभी के। वो किसी को बोरिंग लग रहा है, किसी को पता ही नहीं कि क्या चीज़ें है, कि क्यों हम ये सब मेंटेन करना चाहिए। बट बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करते हैं। मैं भी ये चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी। तो जो भी जब मैंने ये प्रोग्राम के बारे में जाना, ट्रेनिंग ली, उसके बाद उसका पहले मैंने मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस होता है कि नहीं। मैंने देखा, मैंने ये सब फाइनेंशियल डायरी में सब मेंटेन नहीं करता था, तो मैंने पहले स्टार्ट कर दिया। फाइनेंशियल डायरी क्या होती है, मैंने स्मॉल बुक ली, नोटबुक ली, और मैंने उस पर नाम डाला। हाँ, मैंने सभी, मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, हर एक मतलब ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता है, तो दिन भर में कुछ टाइम नहीं रहता। तो रात में सोने से पहले क्या करता था कि मैं एक डेट लिखता था, और जो भी दिन का जो भी खर्चा है उसमें लिख देता था। उससे क्या होता है, मुझे पता होता है कि मेरा कहाँ कहाँ पे पैसा जा रहा है, किस चीज़ों पे मेरा पैसा खर्च हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब मुझे पता रहता था। एंड में क्या करता था, मैं सभी का मिला के हिसाब हिसाब लगा के मैं सब प्लानिंग करता था कि नेक्स्ट मंथ में मुझे क्या करना है। अभी मई एंडिंग में आ रहा है, तो मई एंडिंग का कितना हो गया, ठीक है, कि कितना बच गया, कितना सेविंग मैंने कर दिया, कितना मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ये सब मैंने अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि नेक्स्ट में जून में, अभी जून आ रहा है, तो जून में थोड़ा मैं बजट, हमारा बजट में हमारा जो भी आप देखते थे कि टीवी में न्यूज़ में देखते थे कि हमारा पार्लियामेंट का बजट रहता है, ठीक है। तो फरवरी में वो लॉन्च होता है, उसमें डिस्कस होता है, बहस होती है। तो हर एक का बजट रहना चाहिए, हमारा भी बजट रहना चाहिए कि हम मैं कैसे गुजारे, हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं, क्या क्या उसको हम मतलब इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो जून महीना कैसा निकालना है हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मुझे, मेरे पहले सैलरी कितने, मेरे इनकम कितना है, तो इनकम से मैं क्या क्या करूँगा, कितना मैं पैसा स्पेंड करूँगा, कितना मैं सेविंग करूँगा, उसके बाद कितना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितना मैं इंश्योरेंस का है, मतलब इंश्योरेंस का इंस्टॉलमेंट है, जो भी है, कि किसी का देना बाकी है, सभी का रिकॉर्ड मेंटेन आपको उस फाइनेंशियल डायरी में आपको रखना होता है। उससे क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें में कंट्रोल आपके आपके ऊपर रहता है, चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हो। आपकी आपकी आमदनी कम 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 हो, मतलब 8-10 सैलरी भी हो जाए आपका, तो भी चलेगा, बट आपका उस पर कंट्रोल रहेगा ना, तो आपको बहुत आगे जाके आपको ये दिक्कत नहीं हो जाएगी कि अरे मेरा पैसा कहाँ खत्म हो रहा है, मुझे मालूम नहीं होता, हमारे हाथ में पैसे ही नहीं टिकते। हम ये सभी को कहते क्या, कितना कमाते हैं हम, बट हमारे पास पैसा नहीं टिकता, हमारे पास पैसा ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, कि हम ये दो चीज़ों पे ध्यान नहीं रहते, हमारा इनकम क्या है और एक्सपेंसेस क्या है, ठीक है। तो पहले इन जिन दो चीज़ों को आपको कंट्रोल में रहना चाहिए। हमारे मराठी में एक अच्छी एक मुहावरे है, उसको हम मुहावरे कहते हैं, मतलब मन कहते हैं मराठी में, कि अंतरुण बघून पाय पसरा, मतलब हमारा जो भी जितना इनकम है उतना ही आपका एक्सपेंस होना चाहिए, उससे कम एक्सपेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। जितना चादर है उतना ही आपका पैर पसरना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आपकी कितनी चादर है आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ पे क्या चीज़ है कि शॉपिंग की हमारे बहुत सारी मतलब बैड एक्सपीरियंस है, गुड एक्सपीरियंस है, हमारी आदत है, मतलब जो भी अच्छी आदत है, बुरी आदत है, हम कंट्रोल में ला सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मतलब मान लो 10,000 हमारी सैलरी है, तो मिनिमम 8,000 का हमारा एक्सपेंस होना चाहिए और 2,000 हमारा सेविंग होना ही चाहिए। ये गोल्डन रूल्स है हमारा।
कि 2000 सैलरी का जो भी हिस्सा है वो 2000 हमारा सेविंग रहना चाहिए। अभी सेविंग क्या है? सेविंग मतलब सभी करते हैं, कोई कोई यहाँ पे करता है, कोई कोई नहीं करता है। तो सेविंग की इम्पोर्टेंस इस कोविड के पीरियड में सभी को महसूस होगी, सभी ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया इस चीज़ में, क्योंकि सभी का बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, कुछ गुड एक्सपीरियंस रहा होगा। किसी की जॉब चली गई, किसी की क्या हो गया, किसी का फाइनेंशियल नीड इतना बहुत ये हो गया कि मतलब पता नहीं, फैमिली के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है कि कोई कोविड पॉजिटिव है, कोई क्या कर रहा है, मतलब कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई मतलब ऑपरेशन के लिए चाहिए कुछ, बहुत सारी चीज़ के लिए पैसा चाहिए, बट हमारे पास पैसा नहीं रहता सेविंग से। कोई कोई यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर पाते, तो क्या होता है उसमें हमको बहुत सारी दिक्कतें आती है, हमको पैसा टाइम से नहीं मिलता, तो इधर उधर से हम मतलब अरेंज करके ये सब चीज़ें हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि हम प्लानिंग नहीं करने से हमारे यहाँ पे दिक्कत होती है। कि कोविड में क्या होगा कि सभी को क्या होता है कि एक मतलब सभी को अभी मानेगा, किसी को पता नहीं था कि हम ये से ऐसे दिन दिखने पड़ेंगे कि कोविड आ जाएगा, 1-2 साल हम घर में रह जाएंगे, सभी का बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल सकते, जॉब भी नहीं Excuse me, जा sir. सकते, किसी का जॉब लेस हो चुका है। तो इसमें क्या होता है कि सेविंग का Excuse जो me. भी पैसा है, इन्वेस्टमेंट का जो को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये यस, तो ड्यूरिंग द कोरोना कोविड सिचुएशन हमारा एक्सपेंसेस बहुत कम हो रहा है, उसके बाद सेविंग बढ़ रही है, किसी का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी ने इंश्योरेंस के बारे में पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट कर दिया है कि अभी सभी को बताओ कि कितना इम्पोर्टेंट है हमें। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कितना लाइफ है हमारे इम्पोर्टेंट में, सेविंग कितना इम्पोर्टेंट है, सभी को अभी महसूस हो गया है, क्योंकि कोरोना ने सभी सभी के आंखें खोल दी है कि अब हम ऐसे ही जीना बंद कर दे, हमारा जो भी फाइनेंशियल गोल है कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, मतलब हम आगे का सोचते हैं, बस आगे कल का क्या होगा, बस ये तक हम सोचते हैं, बट हम हमारे जो भी हाथ में डिसीजन है वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये कोई सोचता नहीं था, किसी के बाद ध्यान में नहीं था, बट अभी लोग सोचने लगे हैं। कोरोना ने सभी के आगे खोल दिए है कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा डालते थे लोग कि इंश्योरेंस से क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, बट जब भी हम जो भी कोई भी हॉस्पिटल होता है तो हम एडमिट करते हैं, उसके बाद रिसेप्शन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो रिसेप्शनिस्ट उनको पूछते हैं कि पहले अपने कोई इंश्योरेंस रहता ही नहीं, तो हम यहाँ पे कुछ क्लेम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो सभी को एक एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे कि हम हेल्थ इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है, सभी को लेना चाहिए। तो यही फाइनेंशियल लिटरेसी में चीज़ें हैं कि सभी को हम यही पढ़ाते हैं कि यही अवेयरनेस करते कि ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सेविंग नहीं होने से, इन्वेस्टमेंट नहीं होने से, इंश्योरेंस नहीं होने से हमारी लाइफ में डायरेक्ट इफेक्ट आता है, हमारे जो भी बहुत से हम चीज़ें को हमें संभालना होता है, चीज़ें कंट्रोल में लानी होती है, तो ये सब चीज़ें हम कंट्रोल में ला सकते हैं। हमारी जो भी लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ है, हमारे तरीके से जी सकते हैं। हमारे जो भी यहाँ पे कंडीशन है, हम कंडीशन बेटर कर सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हम कैसे अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, सेविंग नहीं कर रहा था, जो भी चीज़ें मतलब जो भी मेरे इनकम से वहाँ पे मैं स्पेंड कर रहा था, मुझे कुछ पता नहीं था कि ये सब चीज़ें होती है। तो ये प्रोजेक्ट आया, उसके बाद मैंने
ये प्रोग्राम मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने लाइफ में। मेरा एक्सपीरियंस मैंने लिया खुद से, फाइनेंशियल डायरी स्टार्ट की, सेविंग स्टार्ट की, अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने की कि क्या क्या करना है आगे जाके, फाइनेंशियल मेरे गोल्स क्या है मैंने डिसाइड किया। उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी होगी, मैंने सेल्फ टारगेट लिया है सभी के लिए कि मैंने ये सब गोल अचीव करना है। तो मैंने सभी को ये महीने का इतना मेरा सेविंग होना चाहिए, महीने का इतना मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये सब मैंने फाइनेंशियल प्लान करके अभी रखा है। तो क्या होगा, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारी इनकम में ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, मतलब मेरा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि एक इनकम सोर्स पे हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमारे सैलरी पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। तो सोर्स ऑफ इनकम हम बढ़ा सकते हैं। अभी ठीक है, तो इनका जो भी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, हमारी नीड्स है वो फुलफिल होती है। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नीड्स और वांट्स क्या होता है, हमारी ज़रूरत क्या रहती है, हमारी वांट्स इच्छाएं क्या होती है। इच्छाएं मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ज़रूरत इम्पोर्टेंट क्या है, वो मतलब हम किससे ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, किसको ज़्यादा हम एक फर्स्ट पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे डिस्कस करेंगे नीड्स क्या होते हैं, मतलब नीड्स की जो भी चीज़ें हैं, मतलब हमारी जो भी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मतलब अभी सभी दुकानें बंद है, ठीक है, कपड़े का दुकान बंद है, क्या है, फर्नीचर का दुकान बंद है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप दुकान बंद है, मॉल बंद है। अभी क्या खुली है, सब सब नेसेसरी चीज़ें खुली, मेडिकल्स ओपन है, किराने का दुकान ओपन है। सभी को गवर्नमेंट परमिशन किसको दिए है, बस सारी चीज़ें को की जरूरत की चीज़ें है उसी को अभी सरकार परमिशन दे रही है ओपन रखने की। जो भी अननेसेसरी थिंग है वो अभी सब क्लोज है। क्यों क्यों क्लोज है, क्योंकि हमारे लाइफ में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती। हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या रहता है, हमारी जरूरत की चीज़ें, उस पर हम फोकस करना चाहेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस पर हम पहले प्रायोरिटी हम उसको नहीं देते। प्रायोरिटी हमारी चीज़ें क्या रहती है, बाइक खरीदना, कोई टीवी खरीदना, कोई फ्रिज खरीदना, इस पे प्रायोरिटी रहती है। और उस प्रायोरिटी में क्या करते हैं, हम हमारा जो भी पैसा है वो उस पर स्पेंड करते हैं। और टाइम आता है कि हम जरूरत चीज़ें खरीदने का टाइम, तो हमारे पास पैसे ही नहीं रहते। मान लो मेरा मेरा पगार हो गया, मेरा सैलरी हो चुके है 10,000, और मैंने मेरा दिल में ख्याल आया कि मैंने एक मोबाइल खरीदना है। अभी 10,000 सैलरी है, तो 7,000 का मैंने एक मोबाइल खरीद लिया। उसके बाद क्या होगा कि मेरा मेरा किराना रह गया, उसके बाद मेरा खोली का भाड़ा रह गया, मेरा एक इंस्टॉलमेंट रह गया, मेरे बच्चों का स्कूल की पढ़ाई का फी रह गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बाद में कर दी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक क्या किया कि पहले प्रेफरेंस किसको देना चाहिए था, जो भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम पहले प्रेफरेंस देना चाहिए था। बाद में जो अननेसेसरी थिंग्स है, अब आप लैपटॉप खरीदना हो, कुछ भी हमारे घर में चीज़ें लानी हो, तो हम ये नेसेसरी बाद में कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे हाथ में पैसा रहता है। हमारे बाद में पैसा रहेगा तो हम हमारे ज़रूरत की चीज़ें हम पहले मंगाते हैं। उसके बाद जो भी बचा हुआ पैसा है वो हमारे जो भी वांट्स है, हमारी जो भी इच्छा है हमारी, उस पर हम खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सभी भी मतलब बहुत सारी लेडीज़ है, तो लेडीज़ के ऊपर मैं थोड़ा एक्सपीरियंस का एक मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करना चाहूँगा कि लेडीज़ क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनको उनके पास मतलब उनके हस्बैंड हो या कोई फैमिली मेम्बर्स हो, काम करते हो, जो भी सैलरी आती है वो पैसा देते हैं घर के, लक्ष्मी को पैसा देती है, घर की औरत को पैसा देते हैं। तो घर की औरत ही सभी का घर का जो भी खर्चा है वो संभालती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फाइनेंशियल लिटरेसी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कैसे हमको उसको मेंटेन करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि हम नीड्स और वांट्स को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, उसको हम प्रिपेरेंस दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम
एनालिसिस करने से क्या हुआ है यहाँ पे कि हमारा जो भी खर्चा है, तो हम खर्चे में हमारा कंट्रोल रह सकता है। यहाँ पे जो भी हमारा एक्सपेंसेस है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इस आदत से कि पहले किसको प्रेफरेंस देना है, नीड्स हो या वांट्स हो। कुछ भी चीज़ें, आपको पेन भी खरीदना हो, आपका एक सिंपल आपको पेन खरीदना हो, पेन खरीदना आप मार्केट जाते हो, तो पहले वो आपको ध्यान में आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि ये मेरी चीज़ें, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें है क्या। नहीं इम्पोर्टेंट चीज़ें बाद में, वो टाल दो खर्चा जो भी है। उससे क्या होता है, आपकी जो भी खर्चे हैं उसको हम मेंटेन कंट्रोल में ला सकते हैं, हमारा खर्चा कम कर सकते हैं, हम सेविंग ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा सेविंग होने से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सभी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पहले सेविंग करना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में हमारे कि इन्वेस्टमेंट करने से हमें भविष्य में ज़्यादा फायदा होता है। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी है यहाँ पे। हम बेसिक हमारे जो भी नियर बाय ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आप पहले बैंक में कर सकते हो। बैंक में एक एफडी आप रख सकते हो, एफडी खोल सकते हो। उसके बाद आरडी आरडी का ऑप्शन है, एफडी का ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है, आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारा म्यूचुअल फंड है, ठीक है। म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है अभी मौजूद। तो अभी यहाँ पे इंडिया में माहौल है कि वो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ये अच्छी चीज़ है इंडिया में कि ये इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। म्यूचुअल फंड का पहले नाम पता नहीं था सभी को, बट अब म्यूचुअल फंड में बहुत बूम है, बहुत ये है अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी स्कीम अभी लॉन्च हो रही है म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पोस्ट खाते में भी अच्छे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा जो भी मेहनत से कमा हुआ पैसा है वो अच्छे अच्छे मतलब ठीक हाथ में जाइए, अच्छा रिटर्न मिले, ये हमको गारंटी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होना चाहिए। अभी आपने ऐड देखी होगी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहाँ पे शेयर मार्केट का इशू रहता है, सभी का है, अप डाउन्स रहता है, उसमें रिस्क होता है, मतलब सब फिक्स नहीं रहता। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिस्क है, तो रिस्क को यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अरे थोड़ा कम मिलता है, थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है, यहाँ पे आपको रेडी होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा ही आपको मिलता है रिटर्न म्यूचुअल फंड में, आरडी में, एफडी में। बट आपको पैशन रखना चाहिए, आपको भविष्य में लेके उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से आपको बहुत सारी फ़ायदा मिलता है, मुझे भी मिला। मैंने मुझे बैड एक्सपीरियंस मिला पहला। मैंने आपको मैं आपको मेरा मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने एक स्मॉल कंपनी थी इस पुणे में। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, कुछ ने मुझे प्लान बता दिया और प्लान महीने का 1,000 रुपये मैंने सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने टोटल 12 मंथ मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 12,000 हो गया मेरा। सभी का अच्छा रिकॉर्ड था, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो रहा था, उसका एक रिटर्न भी मुझे अच्छा मिला। तो मुझे एक लालच आ गई कि अरे ठीक है, ये पैसा मुझे रिटर्न मिला तो मैं क्या करूँ, वही सब जो भी पैसा मिला है वो बाद में फिर से इन्वेस्टमेंट करूँ। तो मैंने क्या कर दिया, फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, वो कंपनी निकली, फ्रॉड निकली। और वो कंपनी सभी का जो भी ऑफिस है क्या है वो कंपनी लॉक करके निकल गई। जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ वो सब गया, ठीक है।
तो इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, हमको आपको ज़्यादा जानकारी भी रखनी चाहिए कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस किस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो भी प्राइवेट की इंस्टीट्यूट है, जो भी स्कीम्स है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्याज का, उसके बाद जो बहुत सारी स्कीम आती है, उसमें हम आपको सोचने में मजबूर करते क्या, ठीक है, मतलब हम वहाँ पे सोचते नहीं कि ठीक है इतना मिलता है ना, हम कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाद में आपको ज़्यादा एक का डबल मिल सकता है, एक का ट्रिपल मिल सकता है, ऐसे स्कीम आता है। बट हम उस पर ध्यान नहीं रहता, तो हम उस चीज़ें में विश्वास कर सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि आप इन्वेस्ट करते समय बहुत सावधानी बरतें कि आप इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना चाहिए। उसके बाद आपको रिटर्न गारंटेड आएगी कि नहीं, ये आपको गारंटी मिलनी चाहिए। सभी का पेपर वर्क होना चाहिए। उसके बाद जो भी फॉलोअप लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक दफ़ा पैसा हमारा पैसा लगाया तो साल में भी इसके बारे में सोचेंगे, साल के बाद उसके बाद सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं। डे डे वन बाय वन, मंथली या क्वार्टरली हो या हाफ हाफ ईयरली हो, आप वहाँ पे फॉलोअप लेना चाहिए कि क्या हो गया मेरा पैसे का, कितना मेरा रिटर्न आ गया है, क्या हो गया, सभी का मेंटेन आपको रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा चीज़ है, इन्वेस्टमेंट सभी को करना चाहिए। और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी है, और रिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है। तो रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि हमारी लाइफ मतलब आसान नहीं है, बहुत सारी कठिनाई आती है हमारी लाइफ में, रिस्क है बहुत हमारी लाइफ में, कि आगे का क्या होगा आपको पता नहीं, मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, अभी पता नहीं चलता है। कोविड का सिचुएशन किसी को पता, एक रिस्क आ गई, एक हमको बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में लानी थी, कंट्रोल में ला दिया अभी सभी ने, और बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मेंटेन कर दिया। तो रिस्क सभी के लाइफ में होते हैं, तो फाइनेंशियल लाइफ में भी रिस्क होते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करने, पहले प्रिपेयर होना चाहिए, हमारा गोल डिसाइड होना चाहिए कि हम क्या करना चाहेंगे, और उसके बाद ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। उसके रिस्क मैनेजमेंट का पहला ऑप्शन है कि हम इंश्योरेंस लेके हमारा जो भी रिस्क का है, हम रिस्क कम कर सकते हैं। इंश्योरेंस का ये है कि मतलब लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस लेके हमारी रिस्क हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ें हो, हमारे हेल्थ क्या रहता है, कभी कभी हम ठीक रहते हैं, कभी कभी हम बीमार रहते हैं, कोई पता नहीं चलता है, हम पता नहीं कर सकते कि हम आगे जाएंगे या बीमार हो जाएंगे। तो क्या होता है, ये पे रिस्क होती है, तो हम पहले हमारा हेल्थ इंश्योरेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस निकालने से क्या होता है, जो भी हमारा खर्चा है, मेडिकल बिल्स है, हम क्लेम कर सकते हैं, हमारा पैसा वहाँ पे खर्च नहीं होता। बहुत छोटे छोटे टर्म्स इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, मतलब उसका प्रीमियम बहुत छोटा है अभी। आयुष्मान भारत है, उसके बाद जीवन ज्योति योजना है, इंश्योरेंस है, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, उसमें स्मॉल अमाउंट आती है प्रीमियम में, तो हम इंस्टॉलमेंट हम आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट्स के स्कीम से ही क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गवर्नमेंट स्कीम का ही आप क्लेम कर सकते हो। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में ज़्यादा प्रीमियम होता है, ज़्यादा हम इंस्टॉलमेंट देते हैं, मतलब उसका कोई ऐसा, मतलब जो भी ज़रूरत हो वही लेना चाहिए, जितना हमको चाहिए उतना ही लेना चाहिए। एक्स्ट्रा होने से क्या होता है, उनका बेनिफिट होता है, हमारा कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना होता है, आपका कार इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो, जो भी आपकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका आपका दुकान हो या आपका कोई बिजनेस हो, उसका इंश्योरेंस आपको होना चाहिए। क्योंकि पता नहीं कि आपका एक शॉप हो, शॉप अच्छे अच्छे से चल रहा है, तो बीच में क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाता है, सभी का जब भी नुकसान होता है, तो हमको एक नुकसान ये सब खुद खुद को उठाना होता है।
बल्कि हमने कि यहाँ पे इंश्योरेंस लिया तो जो भी नुकसान का जो भी पेनल्टी है, जो भी नुकसान भरपाई है, वो हमारे इंश्योरेंस कंपनी देते हैं। तो उसको यहाँ पे हमारे हमारे ऊपर कुछ नहीं आता। तो हम इस रकम से क्या होता है, दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में हम खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें हैं। हम जाते जाते हमारी बाइक का कुछ एक्सीडेंट हो चुका है, कुछ नई बाइक ली है और एक्सीडेंट हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस से क्लेम करके हम नई बाइक भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। इंश्योरेंस क्यों अभी इम्पोर्टेंट है, सभी को पता होगा। कोरोना ने सभी को बता दिया कि इंश्योरेंस लो, इंश्योरेंस लो। इंश्योरेंस को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग्स है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं? पहले हम मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल डायरी मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद बजट हम कर सकते, मंथली बजट कर सकते, ईयरली भी बजट कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप है कि आपके गोल्स क्या है, आप डिसाइड कर सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स है। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होता है, मंथली होता है, ईयरली मतलब हमारा वीक का प्लान होता है, आज का प्लान होता है, मंथली प्लान होता है। तो हम शॉर्ट टर्म गोल्स पहले डिसाइड कर सकते हैं, मुझे क्या अचीव करना है इस मंथ में। ठीक है, अभी 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 जून का अभी मई चल रहा है, तो जून में अभी क्या करना है, आपको पहले प्लानिंग करना है कि कुछ चीज़ें नए खरीदना है, बच्चों की अभी स्कूल में एडमिशन करवाना है, क्या क्या बस जो भी आपका गोल से पहले डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद वो गोल अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मतलब क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए आपको। पहले क्या करना चाहिए आपको कि गोल डिसाइड किया आपने पहले। मान लो आपको नेक्स्ट मंथ में आपको फ्रिज लेना है, ठीक है, ये पहला आपका गोल हो चुका है, शॉर्ट टर्म गोल से। तो वो फ्रिज लेने के आपको पहले पे सभी को इंफॉर्मेशन क्या निकालनी होगी कि कौन सा फ्रिज लेना है, किस मॉडल का लेना है, उसकी प्राइस क्या होगी, कब लेना है, ये सब डिसाइड करना होगा आपको। और उसको आपको टाइम कितना लगा अचीव करने के लिए, महीने में आपको लेना है या 6 महीने में लेना है, तो ठीक है। तो उसका प्लानिंग कर सकते हैं हम। मंथली उसका एक सेविंग का अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। आपको एक टारगेट लेना है, मंथली आपको 2000 उसके लिए साइड में रखना है। तो जैसे आपने प्लान कर दिया, तो मंथली आपका 2000 का सेविंग अपना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही जैसे महीना गुजरता है, आपका सेविंग बढ़ जाता है और आपके सेविंग से आपको ये फ्रिज आप खरीद सकते हैं। इसके लिए ईएमआई लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई बजाज का फाइनेंस के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं। हमारे जो भी बचा हुआ है, जो भी पैसा है, उससे हम ये कैश से हम खरीद सकते हैं। इसके लिए कोई ईएमआई पे करने का कोई झंझट नहीं है। एक इंस्टॉलमेंट रह गया है, और उसके बाद वो ईएमआई वाले आ गए और वो उठा के ले गया, ये सब चीज़ें नहीं यहाँ पे मेंटेन होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से ये सब होता है। प्लानिंग क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में? आपने देखा कि आईपीएल का अभी मैच स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद हमारे घर में जो भी शादी रहता है, जो भी इवेंट रहता है, तो उसको हम जो भी हर एक इवेंट का प्लानिंग हम करते हैं, और अच्छी तरह से प्लानिंग करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हमारी लाइफ में भी फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग होने से क्या होता है, आपको जो भी रिजल्ट है, आपको जो भी चाहिए वैसे आपको रिजल्ट मिलता है। आपको आपको आप सिर्फ सोचते हैं नहीं है, आगे हम क्या क्या मतलब नेक्स्ट मंथ में हमें फ्रिज खरीदना है, सोचते हैं, उसके उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता, उसको उसको हम प्लानिंग नहीं करते। तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने से ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहते, हम चीज़ें नहीं नहीं खरीद सकते टाइम पे। ठीक है, इस मंथ में नहीं हो चुका है, बाद में लेते हैं, नेक्स्ट मंथ में लेता है, बट वो मंथ आता ही नहीं, आगे जाके नेक्स्ट 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 मंथ के पूरा साल निकलता है, तो भी हम फ्रिज नहीं खरीद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज नेसेसरी थिंग इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग होना बहुत ही नेसेसरी है अभी। प्लानिंग से ही हम कुछ चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। हमारी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होना चाहिए, कंडीशन कैसे हम किसी ने मुझे मैडम ने मुझे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे
दिए थे कि किसी ने पूछा था कि हम हमारे कंडीशन कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल से बहुत सारी चीजें है, बेसिक ये थिंग्स है, हम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी स्टार्ट करेंगे, बुरी आदत हम छोड़ देंगे, जो भी शॉपिंग की आदत है, जो भी खर्चे की आदत है छोड़ देंगे, खर्चे के मतलब सेविंग के ऊपर ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, फाइनेंशियल डायरी के ऊपर ध्यान देंगे। जो भी चीज़ें पॉजिटिव वे है तो पॉजिटिव वे में हम सोचना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंसेस हम कम कर सकते हैं, सेविंग बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। हमारा एक इंश्योरेंस हम ले सकते हैं, इंश्योरेंस लेने से हमारी लाइफ कवर हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, मोबाइल जो भी अभी टेक्नोलॉजीज है उसकी हम यूज़ करेंगे, मोबाइल टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, उससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है, हमारा पैसा भी सेविंग होता है। अभी मान लो जो भी आइटम्स है वो ऑर्डर नहीं कर सकते, हम घर बैठे मोबाइल से हम कुछ भी कर सकते हैं, अभी ऑर्डर कर सकते हैं, हमारा पैसा बच सकता है। यहाँ पे बहुत सारी डिस्काउंट हमें मिलते हैं। और उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें को पता होना चाहिए, घर बैठे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, ऑप्शन के बारे में पढ़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं घर बैठे। किसी को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं। अभी बैंक से हम पैसे निकाल सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं मोबाइल से। तो मोबाइल का भी इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करके हमारी लाइफ इजी कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको पता चला कि क्यों चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि प्लान अब कोई नहीं करता प्लानिंग। ठीक है, बाद में सोचेंगे। हमें लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मेरा मेरा तो लॉन्ग टर्म मैंने गोल डिसाइड किया कि बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन देना है, उनको अच्छी तरह से उनको पढ़ाई करने से उनकी शादी करनी है अच्छी तरह से, एक घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, उसके बाद सर आप म्यूट हो गए सर। अभी अभी आ गया। यस यस यस। हाँ, ओके। और एक बात कहना चाहूंगी, हाँ, समांता जी ने शायद हैंड रेस किया है, तो हम तो आखिरी में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स के लिए ठीक है, जगह रखी है, ठीक है, तो वहां पर क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक। ठीक है, ठीक है, ओके। तो कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। जी जी जी, समझ सकते। जी सर, निष्ठा जी का एक क्वेश्चन, अगर आप चाहे तो अभी ले सकते हैं, वरना बाद में भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। एक 2 मिनट गया है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। जी सर, जी जी। तो थोड़ा मेरा 2 मिनट का रह गया है, तो मैं ये सब कवर अप कर दूँ। हाँ, उसके बाद यस हम सर, क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन लेंगे, 10 मिनट का, 5 मिनट का। यस उसके सर, बाद हम यस सर। क्लोजिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया, मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब यही है, मैंने पहले इतना आपको मैंने बता दिया कि बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट से लेके फाइनेंशियल प्लानिंग तक हम सब चीज़ें आपको अवेयर होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट आपको करनी है। हाँ, कैसे तो के ऊपर है कि आपका फाइनेंशियल लाइफ कैसे करना है, बेटर करना है या बैड करना है, आपके ऊपर है। क्योंकि कोई चीज़ें आपने मैंने आपको बहुत सारा आपको मैंने बता दिया है कि ये सब करो, ये सब करो, बट आपके ऊपर ये आपने इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। मैंने खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं सभी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अच्छी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मतलब जो भी चीज़ें मेरे बैड एक्सपीरियंस है वो भी मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या गलती की मेरी लाइफ में, क्या अच्छा किया है। तो ये दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ, तो आगे का जो भी लिसनर है, जो भी श्रोता है, तो चीज़ें अच्छी लेता है मेरे से कि अरे सर ने ये अच्छा बता दिया है। कि मेरा तो यही मानना है कि इस सेशन से आप क्या कर सकते हो, दो डिसीजन ले सकते हो, कौन सा भी डिसीजन हो, आप दो डिसीजन ले सकते हो।
ठीक है, और प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए। आपने सेविंग करना स्टार्ट नहीं किया तो सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। हम आपके बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट आपका नहीं, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो, सेविंग स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मतलब जो भी चीज़ें आज नहीं हो चुकी है तो आप इससे आगे आप स्टार्ट कर सकते हो। सेविंग आप नहीं कर सकते थे, सेविंग स्टार्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लो। इंश्योरेंस नहीं लेते थे, इंश्योरेंस ले लो। आप एक्सपीरियंस देखो अपने लाइफ में, अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, बैड भी एक्सपीरियंस मिलेगा। बस आपको पॉजिटिव वे में आपको काम करना है, और पॉजिटिव वे में काम करने से आपको जो भी आपके फाइनेंशियल लाइफ है वो इंक्रीज ही होगी। श्योर हो, मैं गारंटेड हो कि इस चीज़ से क्या होता है, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना चाहिए आता। अभी मैं पहले क्या करता था, ये सब चीज़ें नहीं मैं देखता था कि क्या ये सेविंग कितना है, क्या क्या कितना है, कि बहुत सारी मतलब अभी क्या खर्च आ गया, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज आ गया। अभी क्या हो गया कि पेरेंट मुझे गांव से पैसे भेजने के लिए पूछ रहे कि अरे पैसा भेज दो, थोड़ा पैसा कम है। मतलब कोई भी खर्चा हो अचानक आता है, पूछ के नहीं आता। तो इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आपके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा हो या सेविंग का पैसा हो, आपको आपके घर में मेहमान कभी आते हैं, आप कभी बीमार पड़ सकते हो। इसके लिए आपके पास सेविंग का पैसा रहना ही चाहिए। आप इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए आपको, और जो भी एक्सपेंसेस हो, एक्सपेंस के लिए आपको रेडी होना चाहिए। और आप उस एक्सपेंसेस क्या होता है, सेविंग से हो या इन्वेस्टमेंट से हो, आप उसको टैकल कर सकते हो, अब चीज़ें कंट्रोल में ला सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत सारी हमने कवर कर दी। बेसिक फाइनेंशियल कंसेप्ट हो या नीड्स वांट्स हो, फाइनेंशियल डायरी हो, इनकम एक्सपेंस हो, सेविंग्स हो, इंश्योरेंस हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल प्लानिंग्स हो, मोबाइल टेक्नोलॉजीज के बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र किया। तो मैंने सभी को लास्ट में सभी को हम रिक्वेस्ट करेंगे, सभी लिसनर्स को, कि आप पहले आप एंड्रॉयड मोबाइल से अपने गूगल प्ले स्टोर से संवाद ऐप, आपको मैं स्पेलिंग यहाँ पे देता हूँ, संवाद का SAMVAAD, ये ऐप है हमारा। तो एक वोडाफोन फाउंडेशन का अच्छा ऐप है। यहाँ पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स भी, आपको उसका सर्टिफिकेशन भी मिलेगा ऑनलाइन। आपके मोबाइल पे ही सब सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो जाएगा। सभी का आपको कंटेंट कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद डिजिटल लिटरेसी का भी कंटेंट है। तो डिजिटल डिवाइस कैसे आप यूज़ कर सकते हो, सोशल मीडिया आप कैसे यूज़ कर सकते हो, सभी के बारे में बहुत अच्छे से लोकल लैंग्वेज में आपके ये सब वीडियो अवेलेबल है। क्वेश्चन है, क्यूजेस है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो आप ये प्लीज़ आप ऐड कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, और ज़्यादा से मुझसे बेटर आप ये सब जानकारी आपको घर बैठे आपके मोबाइल में पा सकते हो। ठीक है, तो ये यही मेरा कहना था। ये मेरा थोड़ा आपको रिक्वेस्ट थी कि आप थोड़ा पॉजिटिव वे में जाए। आप ये सब मुझे चेंज मेकर आप बन सकते हो। हमारा NIT फाउंडेशन है चेंज मेकर। पहले हम क्या करते हैं, पहले खुद की लाइफ में चेंज लाते हैं, कुछ कुछ मतलब कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेते हैं, कुछ सोचते हैं और हमारे लाइफ में चेंज लाते हैं। तो हमारे लाइफ में चेंज आ गया तो हम दूसरे की लाइफ में हम भी चेंज ला सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, चेंज मेकर कह सकते हैं। ठीक है, तो आप चेंज मेकर बनिए। आप भी चेंज मेकर हो सकते हो। पहले आपकी खुद की लाइफ में चेंज ला दीजिए कि आपने क्या कर दिया, पहले अपने लाइफ में चेंज कर दिया। मैंने ये फाइनेंशियल चीज़ें हमारे लाइफ में यूज़ नहीं किया ना, तो मेरा हक नहीं रहता आपको कुछ बात करने से, आपको मेरे कुछ हक नहीं रहता। मैंने खुद लाइफ में नहीं इम्प्लीट किया तो मैं दूसरे को क्यों बताऊँ। ठीक है, तो आप पहले चीज़ें चेंज कर दीजिए, तो उसके बाद आप दूसरे को बता सकते हो। आप हमारे जो भी आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, जो भी बैड एक्सपीरियंस हो, गुड एक्सपीरियंस हो, आप कोई भी शेयर कर सकते हो।
तो आप भी चेंज मेकर आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे बस लास्ट में इतना ही कहना है। और इस सेशन से कुछ भी आपको डाउट हो या कुछ भी आपको पता नहीं है, मतलब आपको कुछ पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक Thank है, you so much, sir, for this amazing कोई भी conversation. बात बहुत ही अच्छा कॉन्वर्जेशन रहा है और हमारे पास थोड़े क्वेश्चंस है आपके लिए शर्मिष्ठा जी से। उनका एक क्वेश्चन है कि उनको LIC के बारे में कुछ बताएं, क्या? और उनका एक और क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग के बारे में भी थोड़ा उनको आइडिया दीजिए, कितना बेनिफिशियल है, और अगर SIP और वो सब चीजों में भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना हो तो कैसे किया जाए। सो LIC, म्यूचुअल फंड्स और SIP के बारे में अगर उनको जानकारी मिल पाए तो अच्छा होगा। ओके, राइट राइट, थैंक यू सो मच। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि LIC चीज़ें क्या होती है। कि LIC गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी स्कीम। तो डिपेंड आपकी जो भी नीड्स है आपकी, मतलब जो भी आपके लिए बेहतर, बहुत सारी पॉलिसी रहती है यहाँ पे। तो पॉलिसी कौन सी आपको लेनी है, तो उससे जो भी उनका एक एडवाइज़र रहेगा LIC पॉलिसी का, या कोई एजेंट रहेगा, तो एजेंट से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन भी आप ये सब अभी ऑनलाइन भी क्लेम कर सकते हो, खरीद सकते हो LIC। मैंने भी मेरी वाइफ की, मेरी उसके बाद मेरे फादर की, मेरे ब्रदर की 4 महीने LIC मैंने निकाल दिए। और पॉलिसी मैंने बहुत सारी पॉलिसी को मैंने देखा, सर्च किया, रिसर्च किया। उसके बाद मेरा जो भी नीड्स थे वो फील होने से कुछ एक चीज़ें है मेरे लिए अलग पॉलिसी, मेरी वाइफ के लिए अलग पॉलिसी, मेरे फादर के लिए अलग पॉलिसी। ये मैं डिसाइड करके ये पॉलिसी हम ले सकते हैं। आसान है, उसका प्रीमियम भी एक आसान रहता है। आप ऑनलाइन भी प्रीमियम क्लेम कर सकते हो, मतलब पेड कर सकते हो। और LIC से क्या होता है, आपको एक श्योरिटी मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है कि ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में हो जाए तो LIC है, क्लेम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब है। और रहा सवाल इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट के म्यूचुअल फंड अच्छा एक कंसेप्ट है। तो म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 500 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 500 से रुपये, 500 हमारे आपके पास 500 रुपये, तो 500 रुपये से हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है, वो क्या करते हैं, स्कीम निकालते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी ये स्कीम है, आप क्लेम कर सकते हो, एक खरीद कर सकते हो म्यूचुअल फंड का। तो ये एडवाइस सुन के सभी का डॉक्यूमेंटेशन होता है। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में सभी टर्म एंड कंडीशन आपको दिए जाते हैं कि ये आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये आप जो भी आपका पैसा है तो यहाँ पे इन्वेस्ट होगा, वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। तो म्यूचुअल फंड में सब चीज़ें क्लियर होती है। उसका हमारा जो पैसा है, मतलब हमारा शेयर मार्केट क्या होता है, हमारे पास नॉलेज नहीं रहती शेयर मार्केट में कहाँ पे पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट विदाउट नॉलेज हम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड वाले जो भी प्राइवेट कंपनी है, हमारा पैसा क्या होता है, इकट्ठा करके, मतलब मान लो 100 पीपल से 1000 पीपल से 100 पीपल में एक ही इन्वेस्टमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करते हैं कि उस पर एक टीम बनाती है। तो मैनेजर रहता है, उसके बाद जो भी स्टाफ रहता है, वो स्टाफ क्या करता है, हमारा पैसा अलग अलग उनके जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी उनका ये है, उनके एजुकेशन है, उसके ऊपर, उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर, जो भी उनका शेयर मार्केट के जो भी ये है, उनका ऑप्शन है, उनको बहुत सारे ऑप्शन में हमारा पैसा लगता है। और उसका हमारा हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की वो कोशिश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड ये बहुत सारी आसान चीज़ें हैं। आप ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हो। ऑनलाइन ये कर करके आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी वीडियोस है, इंफॉर्मेशन से आप पढ़ सकते हो। और आसान रहता है। बस आपको एक डॉक्यूमेंटेशन साइन करनी होती है। चीज़ें ध्यान में रखती है कि
हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लॉस नहीं हो जाए हमारा ज़्यादा मतलब अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हैं कि शेयर मार्केट का अप डाउन रहता है, कभी चीज़ें कभी भाव बढ़ जाता है, कभी भाव कम आता है, तो इसमें हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पे एसआईपी में ध्यान देता है सभी का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि म्यूचुअल फंड आप आसानी से ले सकते हो, ऑनलाइन आप ले सकते हो या ऑफलाइन भी ले सकते हो। तो बेटर हो आप इंटरनेट से आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में। तो अभी चीज़ें बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीमें बाज़ार में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो यहाँ पे। LIC भी अच्छा एक इंश्योरेंस का आपने पॉइंट रखा दिया कि LIC इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी, मतलब बेटर है, मतलब गवर्नमेंट का स्कीम है तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। हमारा जो भी हम LIC पे इन्वेस्ट करते हैं तो नहीं हो, बहुत सारी चीजें करते हैं, पता है उसकी जो भी पॉलिसी है वो पॉलिसी डे टू डे चेंज होती है। मतलब अपने वो उस टाइम खरीदा था उस टाइम का सिचुएशन अलग था, टर्म्स अलग था, अभी चेंज होता थे उनके वो सब वो चेंज करते हैं, तो हमारा यहाँ पे लॉस हो जाता है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या रहता है कि उनकी जो भी टर्म कंडीशन वो फिक्स रहती है, और जो भी उनका रिटर्न का पॉलिसी वो भी फिक्स रहता है, उसके लिए हमारा कोई लॉस नहीं रहता कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं LIC पे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी सर, शुक्रिया, वो बहुत सर बढ़िया तो जवाब था। जब मैं शाम को आऊंगा सैंपल देने के लिए तब उनको पैसे दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर एक पूछना था मुझे पर्सनली कि चलेगा, तो फ्लक्चुएशंस फिर एक होता काम है करता हूँ, शाम मार्केट को में, sample दूंगा, तो हाँ हाँ बहुत सारे कंपनीज मैं बोलते हैं पेमेंट कि कर दूंगा। फ्लक्चुएट मार्केट अभी यहाँ से आप फ्लक्चुएशन की आएंगे तो वजह फिर से हो जाएगा, आपको लेने कम के लिए। मिल रहा है, तो फिर क्या शाम को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें भी फ्लक्चुएशन होता है और उसका असर हमारे इन्वेस्टमेंट जो किया है उस यस पर होता है क्या? यस 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 यस, मतलब जो भी शेयर मार्केट का जो भी है आपने बता दिया अभी कि सभी का जो भी गवर्नमेंट की कंपनी हो या प्राइवेट की कंपनी हो, मतलब हम शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाते हैं तो उसमें अप एंड डाउन्स रहती ही रहती है। तो शेयर मार्केट मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। जिसको नॉलेज रहती है शेयर मार्केट की, वो आसानी से अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगाता है, उसके लक के ऊपर या उसका एक्सपीरियंस के ऊपर वो लगाता है पैसा, और उसको रिटर्न अच्छे मिलते हैं। कई कबार उनके लक से हो या कोई उनका एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, उसके ऊपर वो पैसे लगाता है। किसी को ज़्यादा फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, तो ये डेली रहता ही रहता है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क भी है, शेयर मार्केट भी रिस्क भी है, बट वो रिड्यूस कर सकते हैं हम। उसके अलग अलग से टाइप्स है। बॉन्ड भी हम साइन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। बॉन्ड वैल्यू भी हम साइन कर सकते हैं कि बॉन्ड्स साइन करने से क्या होता है, आपको जो भी कमिटेड प्राइस है, जो भी कमिटेड आपकी वैल्यूज है वो आपको रिटर्न मिलती है। तो वो भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में। तो ये ऑप्शन आपको जो भी खरीदते समय आपको जो भी एडवाइज़र है, जो भी उसके एजेंट्स है, वो बेटर तरह से आपको वहाँ पे उस टाइम समझा सकता है कि आपके लिए बेटर पॉलिसी कौन सी है, आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है, वो अलग से आपको वहाँ पे एडवाइस कर सकता है। आप थैंक यू सो मच सर। सर शर्मिष्ठा Just a चल second, Arwa Kapasi, just a second. I will ask the questions. Um, इशिका जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए और कौन सी डिटेल्स आप बता सकते हैं, सोर्सेज कहाँ से सोर्सेज ऑफ इनकम और मिल सकते हैं। तो शर्मिष्ठा जी ने उसके लिए बताया है कि बेसिकली होम मेकर जैसे ट्यूशंस ले सकता है शाम को, वैसे कर सकता है। आपके पास और कोई एग्जांपल्स होंगे सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए? हाँ राइट, मतलब सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है वर्क फ्रॉम होम का। तो हम मतलब ऑनलाइन घर बैठे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। अभी चीज़ें अभी आप में आपको बाहर जाना नहीं है, कि किसी के सामने मतलब ट्रैवलिंग नहीं करनी है, कुछ
नहीं करनी, बस आपको एक लैपटॉप या मोबाइल हो। घर बैठे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो, आपके पास ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, उसके बाद पेड काम भी ले सकते हो, कोई भी कंपनी का आप अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी बहुत सारी कंपनी दे रहे हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम बहुत है अभी। उसके बाद आप घर बैठे कोई यूट्यूब का चैनल लॉन्च कर सकते हो, रेसिपी डाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। आप आपके इंटरेस्ट है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपके मतलब अपने मतलब अपना परफेक्ट आप डांस में डांस क्लास ले सकते हो, ठीक है। डांस क्लास का आप एक कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो, उसको ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो, ऑनलाइन ये सब अभी सभी कर रहे हैं, ऑनलाइन बैठ के सभी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और सभी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ अभी क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक कोर्स किया था घर बैठे कि केक डिज़ाइन का, मतलब केक मेकिंग का कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर दिया, और घर घर बैठे वो अभी ऑर्डर ले लिए, मतलब ऑर्डर दे के ऑनलाइन उनको पढ़ाती भी है, और उसके बाद ऑनलाइन का ऑर्डर भी लेते। जस्ट वन आवर्स लग सकता है एक केक बनाने के लिए। तो वो मतलब सोर्स ऑफ इनकम आपके ऊपर है, मतलब आपके इंटरेस्ट कैसे है, मतलब आप कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। आप टीचर हो तो टीचर में आप डेफिनेटली आप ऑनलाइन टीचिंग का क्लासेस ले सकते हो। अभी स्कूल में भी देखो, कॉलेजेस हो या केजी से हो या कोई नर्सरी से हो, सभी बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस लेते हैं, तो आप भी ऑनलाइन के बारे में सोच सकते हो, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में सोच के आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकते हो। हेलो। थैंक यू सो मच सर। अरवा कपासी बोल रहे हैं कि कुकिंग क्लासेस ले सकते हैं, लैंग्वेज सिखा सकते हैं बच्चों को, ये सभी आइडियाज है। और किसी के पास अगर कोई कौन से? क्वेश्चन है, लैंग्वेज सिखा सकते हैं। मैं जी शर्मिष्ठा जी, आपने हाथ ऊपर किया है, अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर अभी जैसे ऑनलाइन नेटवर्किंग का बहुत ये आ रहा है, तो इसके बारे में मतलब ये क्या सर कितना सेफ है, कितना मतलब आइडियल है करने के लिए? ऑनलाइन का चीज़ें देखो क्या होता है कि सभी का जो भी टेक्नोलॉजीज है, वो टेक्नोलॉजीज का कुछ एडवांटेज रहता है, कोई डिसएडवांटेज रहता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कि ऑनलाइन की चीज़ें या मतलब अभी नहीं का मतलब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब नेटवर्किंग क्या होता है, हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट क्या होता है, हम लैपटॉप से कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उससे होने वाली जो भी अननेसेसरी थिंग्स है, मतलब अनवांटेड थिंग्स है, मतलब फ्रॉड वाली, वो भी है यहाँ पे इंक्लूड, वो भी होती है। अभी ड्यूरिंग कोरोना पीरियड में बहुत सारी चीज़ें ये बढ़ रही है, ऑनलाइन फ्रॉड का माहौल बढ़ रहा है, तो इसके लिए बेसिक फाइनेंशियली डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ें हो, मतलब कोई भी आपके मोबाइल पे कोई ऐसा क्लिक आ जाए, लिंक आ जाए, आप क्लिक करें, और उसके बाद आपको कोई कॉल आया, आप ओटीपी शेयर किया, उसके बाद कोई ऐसा फ्रॉड का मतलब मैसेज आता है आपको, कॉल पे कॉल आते हैं, ठीक है। मेरे साथ ये हो चुका है कि एक फ़ोन पे का कॉल आ गया था, वो कैशबैक के बारे में बात कर रहा था। मेरे को पता था कि ये सब फ़ोन पे ऐसा नहीं करता, कोई कॉल नहीं करता, इसीलिए मेरे को पता चला कि ये फ्रॉड कॉल है। बट किसी को पता ही नहीं रहता है कि अरे ऐसे भी कॉल आते हैं, कोई फ़ोन पे कोई कॉल नहीं करता, ये चीज़ें उनको वो उस कॉल के बंदे पर ट्रस्ट करते, जो भी वो प्रोसीजर बताता है वो फॉलो करते हैं, और कुछ कैशबैक नहीं आता, कुछ नहीं आता, बहुत सारे हमारा पैसा वहाँ पे, मतलब हम बैंकिंग के डिटेल्स शेयर करते हैं, हमारा आईडी पासवर्ड शेयर करते हैं, हमारा
क्या है अकाउंट के सभी डिटेल्स शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें इग्नोर होनी चाहिए कि नेटवर्क के बारे में जानना होना चाहिए, हमारा जो भी डिजिटल डिवाइसेस है उनके बारे में जानना चाहिए। उसके लिए आपको कंप्यूटर से या बेसिक नॉलेज के लिए आपको यूट्यूब के चैनल से या गूगल्स में आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम हाउ टू कैसे हम चैनल बना सकते हैं। आपको मतलब ये सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ पे बारे में बता रहा हूँ कि आपको एक चैनल लॉन्च करना है कि हम कैसे हमारा खुद का चैनल कर सकते हैं, भी बढ़ सकता है। तो ये थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी मतलब चीज़ें हैं वो आसानी से नहीं होती, थोड़ा इसके लिए थोड़ा वर्क होना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, थिंग्स सीखना पड़ता है। तो कभी उसके बाद मैडम ने पूछा कि लैंग्वेज के बारे में, तो लैंग्वेज के बारे में बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है ऑनलाइन मौजूद है कि वो बच्चों को घर बैठे ऑनलाइन के लैंग्वेजेस के बारे में वो पढ़ाती है। तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो कि कौन सी ऐसी वेबसाइट है, वो वेबसाइट से हम ये बच्चों के लिए लैंग्वेज के जो भी ट्यूटोरियल्स है, जो भी वीडियोस है, वो फ्री में आप यहाँ पे उसका लाभ उठा सकते हो। तो ये ऑप्शंस है, मतलब इंटरनेट का जो भी फ़ायदा है आप वो उठा सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अभी बच्चों को ऑनलाइन ट्रेनिंग का सेशन देती है, उसको ट्यूटोरियल देती है, कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सब भी ऑनलाइन के लिए मौजूद है, बट उनको सर्च करने के लिए प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद कौन सी वेबसाइट श्योर है, मतलब हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, कौन सी वेबसाइट फेक है, फेक भी रहते वेबसाइट। अपने सर्च करने से आपको वो भी पता होना चाहिए कि ये जेन्युइन वेबसाइट है क्या, फेक वेबसाइट है क्या, ये भी पता होना चाहिए। वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? हम सर्च करने से क्या होता है कि हम वेबसाइट एड्रेस से स्टार्ट से क्या होता है, HTTPS का एक लोगो रहता है, मतलब एक टाइप रहता है, इसका टाइप होता है कि वो मतलब लाए, उसका मतलब है सिक्योरली डिजाइन किया हुआ है, उसका कोई फेक नहीं, कोई थ्रेड हुआ है। और एचटीटीपी और उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस रहता है, वो पता है वो सिक्योर नहीं रहती, उसमें बहुत सारी सिक्योरिटी अटैक आने के चांसेस रहते हैं। कोई भी उस वेबसाइट के ज़रिए आपको कुछ भी मैसेज भेज सकता है, कुछ भी लिंक भेज सकता है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आपको कोई भी जानकारी देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, फॉर्म फिलअप करने के लिए बोल सकता है। तो ये सब चीज़ें अनवांटेड थिंग्स हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पहले से बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद आप उसमें डीप में जाके यहाँ पे काम कर सकते हो। मेरा तो एडवर्टाइज ये मेरे तो आपको मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारी वास्ट है, कुछ करना चाहेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, बट चीज़ें पहले स्टार्ट करने से आपको पहले क्या करना है, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन आपको लेनी होती है कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लेनी होती है, कौन सी स्टडी करनी होती है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे आप कौन सा भी क्वेश्चन आप डाल दो, उसके ऊपर वीडियो बना ही रहता है। आप वहाँ पे आपको राउटर के बारे में मालूम है, आपको एक राउटर खरीदना है, ठीक है, या कोई चीज़ें खरीदना हो, कोई भी चीज़ है, फ्रिज खरीदना हो या राउटर खरीदना हो, उसके बारे में पहले जान लो कि क्या कौन सा मैं ले लूँ, कौन सा बेटर मेरे लिए अच्छा है, तो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चंस है तो अभी पूछ सकते हैं।
इशिका जी थैंक यू बता रहे हैं और समीक्षा जी भी थैंक यू कह रहे हैं आपको। आप थैंक यू, चैट धन्यवाद। बॉक्स में देख सकते हैं। हाँ, धन्यवाद अम, मैडम। और किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो अभी बता सकते हैं, वरना ये हमारा सेशन का एंड है आज के दिन। सो आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई थिंक और कोई क्वेश्चन ओके। नहीं है इस समय। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के इतना अच्छा ओके। हमारे साथ सेशन लिया है, आपका जानकारी शेयर किया है। और मुझे स्पेशली बहुत मजा थैंक आया यू। आपकी कहानी सुनने के लिए, आपका एक्सपीरियंस सुनने के लिए। हमें काफी मदद मिलेगा इससे। हमें आगे भी अगर हमें भी कभी करना है फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स में ये वो, तो हमें जानकारी आपकी काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्प मिला है आज आपसे बात करके। और कुछ क्वेश्चन ओके। आंसर्स हमने पूछे हैं, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं उनके लिए, और हमें बहुत हेल्प मिला है उससे भी। आगे भी हमारे ऑडियंस के लिए और आपके लिए हमारे बहुत सारे नेक्स्ट सेशंस होने वाले हैं। पेरेंट एंड चाइल्ड गाइडेंस के लिए, अडल्ट विद स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन, यूडीआईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ये सब अलग अलग सेशंस होने वाले हैं हमारे आगे भी। और आप सब जो भी इस समय है ऑनलाइन, आप हमसे कांटेक्ट में रहे और ये सेशंस का फायदा उठाए। Procedure for legal guardianship and opening a trust account for children with special needs and other matters, ये सब में भी सेशंस होने वाले हैं। एंड ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू होल्ड अ सेशन रिगार्डिंग स्किल ट्रेनिंग फॉर चूजिंग अ वोकेशनल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन। सो बच्चों के लिए गाइडेंस फॉर पेरेंट्स, ये सब बहुत सारे सेशंस होने वाले हैं। एंड वी होप एंड वी एनकरेज कि आप सब इसका फायदा उठाए और हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, और दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। So पहला कॉल में पाथवे फाउंडेशन का थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये सेशन अरेंज किया, अरेंज किया, उसके बाद मुझे इनवाइट किया। मैडम ने मुझे 1 महीने पहले उनको मैंने बता दिया कि सेशन अरेंज करना है, कि आप आ सकते हो क्या। मैंने क्विकली मैंने बता दिया कि आप कभी अरेंज कर सकते हो, मेरा जो भी टाइम रहेगा आपको मैं दूंगा। और मैडम ने अच्छी तरह से अरेंज किया है, तो थैंक यू पाथवे फाउंडेशन। और सभी को पार्टिसिपेट जो भी आज हुए सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना समय से आप मुझे सुन रहे हो। तो अच्छा लगा सभी से बात करने के लिए। और मेरा यही कहना था लास्ट में कि आप सभी ने बेटर एक्सपीरियंस के लिए वो ऐप डाउनलोड कीजिए, और इस ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड में आप हेल्दी रहिए, आपका हेल्थ और आपकी जो भी फैमिली है सिक्योर हो जाए, ये मेरे ईश्वर से प्रार्थना है। और सभी के लिए ये जो भी कंडीशन है वो मतलब अच्छी फिनिश हो जाए। आप ड्यूरिंग ये फाइनेंशियल लिटरेसी तो होता ही रहता है, बट आप फाइनेंशियल चीज़ें से बहुत सारी लाइफ में चीज़ें आप पा सकते हो। फैमिली का इम्पोर्टेंस आप जान सके हो। कोरोना का एक मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। हम फैमिली के ऊपर पहले ध्यान नहीं देते थे कि हर एक चीज़, हर एक फैमिली मेम्बर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने फैमिली का ध्यान रखिए, आप सब सुरक्षित रहिए। और आपके लिए आगे के लिए मैं आपको एक यही गुजारिश करूँगा कि आप डिसीजन लीजिए इस सेशन से। मैंने पहले बता दिया कि 2 डिसीजन लीजिए, और आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ गए तो आरवा मैडम से आप शेयर कर सकते हो, मुझे शेयर कर सकते हो। आपका जो भी एक्सपीरियंस है मैं यहाँ पे नोटिस कर लूँगा। हमारे केस स्टडीज होती है, हम केस स्टडीज बनाते हैं और हम वोडाफोन को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस सेशन से किसका फ़ायदा हो गया, किसके लाइफ में चेंजेस आ गई है, उसके ऊपर हम एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। तो ज़रूर आप ये चीज़ें हमारी लाइफ अपने लाइफ में ये सब इम्प्लीमेंट कीजिए, ज़रूर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू। हमारे साथ हमारे ट्रस्टी जैनब कपासी थे जो होस्ट कर रहे थे, को होस्ट कर रहे थे।
थैंक यू सो मच। वो बहुत ही अच्छे से अच्छी तरह से उन्होंने कोर्स किया है और बहुत अच्छे से हैंडल किया है। थैंक यू जैनब Thank- कपासी, थैंक यू अविनाश सर, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। Thank you so much. और ये एक मैं बात कहना चाहूंगी कि हाँ जी, थैंक यू आपको कि आपने टाइम निकाला सर हमारे लिए, हमारे ये सेशन करने के लिए।